is to identify a unknown plant. Okay, and with these type of keys you can identify a unknown plant. Key for a unknown plant is there in the floras and manuals. You know very well flora और manuals होते हैं जो कि लिटरेचर होता है and they are based on the keys. उसमें कीज होती हैं, ठीक है, और उन कीज की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, किसी भी अननोन प्लांट को आइडेंटिफाई कर सकते हो. सो इन दिस लेक्चर वी विल सी व्हाट आर दीस टैक्सोनॉमिकल कीज. ओके, सो दे हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ अननोन प्लांट बाय कंपेयरिंग विद द प्री-डिटरमाइंड मटेरियल. मींस अ प्लांट मे बी अननोन टू यू बट दैट इज नोन टू द टैक्सोनॉमिस्ट ओवरऑल द वर्ल्ड. ओके, तो जो भी टैक्सोनॉमिस्ट होते हैं उन्होंने क्या प्रिपेयर किया होते हैं, फ्लोरास, मैनुअल्स, ठीक है, जो कि वेल नोन प्लांट होते हैं, वेल नोन पीपल होते हैं, ठीक है. तो उन फ्लोरास में वो कीज होती हैं और उन कीज को पढ़ के और उनको स्टडी करके तुम किसी भी अननोन प्लांट को आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है, बाय कंपेयरिंग विद द प्री डिटरमाइंड मटेरियल. See, the key is an analytical arrangement or it is a artificial analytical arrangement. Can you tell me what is analysis? Or what do you mean by analytic? Very important term. Quite often asked in examination. Need में या फिर अदर की taxonomical keys कैसी होती हैं? Are they analytical or not? Can you tell me analysis क्या होता है? Very simple word. Chemistry is based on the synthesis and analysis. Kindly जरा वर्ड में भी चेक किया करो, ठीक है. So simple word. 9th-10th का बच्चा भी बता देगा जो is to analyze. Analyze is to pick up, means to divide in parts, okay, or to divide in sets. Analysis, analyze करना means अच्छे से उस चीज़ को grasp करने के लिए उसको पहले breakup करना, उसको क्या करना, synthesize करना, okay. Analysis. So these are analytical. Analytical means you have to use your brain. You have to analyze it completely based on observation or based on the comparison. Okay, so they are artificial analytical arrangement where a choice is provided between two contrasting characters or two contrasting proposition where you will accept one and reject one. Suppose means you have two plants, one have your compound leaf or other have simple leaf, ठीक है, and you know very well there are two characters of leaf, simple leaf or compound leaf. If you find an unknown plant that has leaf compound leaf, okay, so you will get idea that this is the plant which has compound leaf. So there will be two contrasting statements, leaf simple or leaf compound for a particular genus. Okay, so the plant in your hand you will observe what kind of character it has, and if it has compound then you will place it in the genus where the plant have compound leaves. Okay, so there will be two contrasting characteristics or two contrasting propositions and you will accept one and reject other. Like in this case you will accept the leaf which have compound and reject the simple leaf. So in this way you will make two contrasting statements, or you know these single pair of contrasting character is known as couplet. We call that couplets. Like stem woody or stem herbaceous. We have two contrasting character, stem woody or stem herbaceous. Then we call it couplet. क्या बोलेंगे उनको? Couplet. And the statement of a couplet. In statement you will see the plant is herbaceous perennial or the plant is herbaceous annual. Okay? Yeah, you can say stem herbaceous perennial or stem woody perennial. Okay? तो ये जो statement होगी that is known as lead. क्या बोलेंगे उसको? Lead. Okay? So you will choose some character and these character they should be contradictory to each other. You will accept one and reject other. And you call them couplet. क्या बोलोगे आप लोग? Couplet. Okay? और जो की statement होगी उसको क्या बोलोगे? Lead बोलोगे, ठीक है? The character represented in the form of key to differentiate between taxon of higher rank than the genera, then it is known as synopsis. क्या बोलेंगे उसको? Synopsis. Means ये जो थी आपके जो मैं बता रही हूँ stem herbaceous है, stem क्या है, they are for the genus or species. किसके लिए वो? Genus or species के लिए, ठीक है? But higher than genera, then we call that synopsis. तो उसके लिए जो keys होगी higher than genera, उसको क्या बोलोगे आप? Synopsis बोलोगे, okay? So you can see here, these are the taxon
start with the same word. Seed absent or seed present. ठीक है? And you can divide entire plant kingdom into two categories. Seed don't have seed or have seed. So then the plant without seed you can again further divide it into. Here you will take characters of no true root, stem or leaves. Okay? Here root, stem and leaves are present. Again two contradictory statement. You will accept one and reject other. अगर आपके हाथ में एल्गी है तो आप इसको क्या करोगे? एक्सेप्ट करोगे और उसको क्या करोगे? रिजेक्ट करोगे. एंड इफ यू हैव इन योर हैंड मॉसेस है या फिर आपके पास टेरिडोफाइट्स है तो आप इसको क्या करोगे? रिजेक्ट करोगे. ठीक है? लाइकवाइज यू विल मेक टू कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट एंड दे शुड स्टार्ट विद द सेम वर्ड. ठीक है? और उसके बाद एक को तुम क्या करोगे? एक्सेप्ट करोगे और दूसरे को क्या करोगे? रिजेक्ट करोगे. ठीक है? Similarly, you can see here in lichens also has no root, stem or leaves, has some root, stem or leaf structure, then we call it mosses. क्या बोलेंगे उसको? Mosses. छोटे छोटे डिफरेंशिएट होना जब शुरू होंगे, then we call it mosses. Okay? और जो प्रॉपरली होंगे जिनमें root, stem, leaves उनको क्या बोलेंगे? So you can differentiate entirely. And if you talk still higher, तो यहाँ पे आप देख लीजिए both seeds are presenting both. ठीक है? Then we have again two contradictory statements. Flower absent or flower present. Flower absent में क्या आएंगे आपके? Gymnosperms. और present में क्या आएंगे? So simple है. So these are the keys. And you don't need here plant material and anything. Okay? Only with the knowledge of these keys you can identify the plant kingdom. Okay? So these are the synopses which are for the taxons had in the genera. So these are a little bit easy. Now next is your the keys which are for the genera and the species. Okay? Again we can see here we make choices between two contradictory statements. And the choices of contradictory statement, that is very important. You have to choose the relevant character. So many characters are there in algae, fungi and rye. ठीक है? अगर आप irrelevant character choose करोगे then you will not able to differentiate. जैसे जिम्नो और एंजियो में बहुत सारे character हैं, पर आपने किसको choose किया? Seeds को, क्योंकि seed क्या है? Differentiating factor. So you have to choose the right statement, right contradictory statement. So the essential component of taxonomic publications, flora and mammals, that is key. आपको keys कहाँ मिलेंगे? Flora and mammals. तो उनका एक essential keys, उनका काम ये keys provide करना identification. ठीक है? So the use of key is the most widely used method for identification, and it does not require time, material or experience for comparison and recognition. बस आपको keys पहचाननी आनी चाहिए, पढ़नी आनी चाहिए. ठीक है? तो आपको प्लांट मटेरियल नहीं चाहिए. ठीक है? तो बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं होती है आपको, बस आपके पास वो प्लांट होना चाहिए. उसके करेक्टर अगर आपने देखे इवन देन यू कैन आइडेंटिफाई. सपोज आप देख रहे हैं प्लांट मिला आपको और आपने उसको अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया, अगर वो उस टाइम आपके हाथ में नहीं भी है तब भी आप उसको क्या कर सकते हो? आइडेंटिफाई. पर वो प्लांट होना चाहिए, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए उसका. जैसे सबसे कॉमन प्लांट जो तुमने देखा हो कौन सा है जिसको तुम उसका एक पार्ट पहचानते हो? जैसे मैंगो हो सकता है, सनफ्लावर हो सकता है. तो सनफ्लावर के पढ़ के जो पता है कि हाँ जी इसमें ऐसा ही होता है. रोज हो गया जैसे, तो रोज में आपको पता है कि लीफ कैसी है? कंपाउंड लीफ. कैसे है? न्यूक्लियस. तो उसके कैरेक्टर एक पता होना चाहिए. देन यू डोंट नीड इवन प्लांट मटेरियल, ज़्यादा टाइम की जरूरत नहीं, योर एक्सपीरियंस होगी. ठीक है? According to Usborne, the most efficient key is the one which each dichotomy divide the remaining taxa symmetrically. जैसे तुमने फर्स्ट उसमें देखा कि वो सबसे अच्छी की है जो सारे रिमेनिंग टैक्सा को कैसे करे? सिमेट्रिकली डिवाइड करे. मींस कंफ्यूज ना करे, क्या करे? सिमेट्रिकली डिवाइड करे. तो वो वाली की क्या होगी? मोस्ट एफिशिएंट. ओके? सो यू कैन मेक कीज, यू कैन राइट फ्लोरास इफ यू हैव सच काइंड ऑफ नॉलेज. ठीक है? थिंक अबाउट, क्योंकि मंडी में भी बहुत सारे हिमाचल में जो है बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के फ्लोरा अवेलेबल नहीं है. ठीक है? तो सो यू कैन गो फॉर फ्लोरास, यू कैन गो फॉर मैनुअल्स. मैनुअल जब हम एक ही जीनस की बात करेंगे, वो तो तुम इतने सारे प्लांट्स हैं, तुम किसी को भी पकड़ सकते हो. ठीक है? जैसे तुम डैंडेलियन की बात करो, डैंडेलियन ऑफ हिमाचल प्रदेश कि कहाँ मिलता है, कैसा, उसकी एक एक चीज़ तुम कर सकते हो. ठीक है? सो यू कैन डू अ लॉट इफ यू हैव अ राइट काइंड ऑफ नॉलेज. These are the tools for taxonomic analysis. Since in their preparation one must select, evaluate and arrange taxonomic character. तो ये एनालिसिस मैंने कहा आपको कि डिवाइड करना. तो डिवाइड में आप पहले क्या करोगे? सिलेक्ट करोगे कैरेक्टर्स.
मीन्स आप उस जो भी आपका है प्लांट उसको आप प्रॉपर आइडेंटिफाई करेंगे, उसको एनालाइज करोगे। एनालाइज करने के लिए फर्स्ट यू विल चूज सम कैरेक्टर, देन यू विल इवैल्यूएट दे आर राइट और रॉन्ग, कि जो आपने कैरेक्टर चूज किया है वो सभी सही है कि नहीं है, करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। एंड देन अरेंज करते हैं दीज टैक्सोनॉमिकल कैरेक्टर, ठीक है ना। अभी तो तुम्हें बनी बनाई की मिल रही है, बट सपोज आप उस स्टेज तक रीच कर गए हो, आपने बहुत ज़्यादा काम किया है और आपको क्या करना है, किसी नए प्लांट की या किसी मैनुअल की क्या लिखनी है, टैक्सोनॉमिकल कीज, देन यू हैव टू डू एनालिसिस। पहले आपने उसके सारे कैरेक्टर देखने होंगे, एनालाइज करने होंगे, सिस्टम में ऑब्जर्व करने होंगे, फिर उनमें से क्या करने पड़ेंगे, रेलिवेंट चूज करने पड़ेंगे, सिलेक्ट करने पड़ेंगे, फिर वो इवैल्यूएट करने पड़ेंगे कि दे मेक अ कंपैरिजन और नॉट, देन यू हैव टू मेक अ टैक्सोनॉमी। सो दीज आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ टैक्सोनॉमिक प्रोसीजर एज वेल एज मीन्स ऑफ प्रेजेंटिंग फाइंडिंग्स। फाइंडिंग्स मतलब तुमने काम किया किसी एरिया में, तुमने सारे स्पीशीज को देखा, ठीक है, तो इन कीज के तरीके से तुम अपने काम को क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। लाइक जैसे फ्लोरा ऑफ मंडी लिखा है पीवीसी जी ने, ठीक है, जो कि कहाँ के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, तो वो काफ़ी साल उन्होंने यहाँ पे स्टे किया। अगर तुम उस फ्लोरा को देखोगे अच्छे से तो उन्होंने उस प्लांट की डिस्क्रिप्शन भी लिखी है कि उनको कहाँ मिला है। इवन उन्होंने लिखा है कि ये मुझे मूर्तिपुर में मिला, जैसे अब हम कहीं टूर पे गए थे तो हम बोल सकते हैं ये प्लांट हमें कहाँ मिला, सियोल में मिला या कहीं और मिला। अगर तुम्हें फ्लोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश लिखना है तो ठीक है, अगर मंडी लिखना है तो मंडी से बाहर नहीं जाओगे, ठीक है ना। सो यू हैव टू यूज़ योर फील्ड एक्सपीरियंसेस, समझ गए कि नहीं। तो ये जो टूर होते हैं ना, तो यार वेरी यूजफुल अगर तुमको सही मायने में लो, सिर्फ डांस करने के पर्पज से जाओ तो नहीं है, बट यू हैव टू टेक देम सीरियसली, ठीक है। इंजॉय जरूरी है, इंजॉय के साथ साथ में क्या करना पड़ेगा, चीज़ों को एनालाइज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या कंपेरिजन है, कैसे है, कौन से प्लांट यहाँ होते हैं कि नहीं होते हैं। जैसे अब हम वहाँ गए थे ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, तो तुम्हें यहाँ मंडी में तो नहीं, क्या नहीं मिलेगा, टैक्सेस नहीं मिलेगा, वो हायर एल्टीट्यूड का तो कहाँ मिला, वहाँ टैक्सेस मिलेगा। स्टिल वन इन मंडी वी हैव हायर एल्टीट्यूडनल जोन, जैसे कि तुम्हें जिंजा लेंगे क्या मिल जाएगा, टैक्सेस सीधे भी मिल जाएगा, ठीक है। इवन यहाँ पे आके देवीगढ़ के पास भी एक नर्सरी बिल्ड की हुई है, एक तुन्ना नर्सरी है वहाँ पे उन्होंने क्या लगाया है, टैक्सेस का होता। और मैंने बाहर लाया, जरा उनसे पूछना, वो जो भिक्खू है ना वाली जी, उनसे पूछना कि कहाँ है, और तुम अच्छे से उसको स्टडी कर सकते हो। इवन एक प्लांट मैंने और दिखा रहा था मिस योलसर लेक में, एटलिया मैरीफॉलियम, जो बच्चे मेरे साथ थे 2-3, आई डोंट नो सेकेंड दो थे, वाइट फ्लावर होते, वो भी हमें बाहर मिला था, और वो भी मैंने यहाँ लगा हुआ है पॉट में, ठीक है ना। ऑल्दो इट्स अ प्लांट ऑफ हायर एल्टीट्यूड, ठीक है। और जब तुम नेचर में जाते हो ना, देखो जब हमने स्टार्ट किया ह्यूमन बीइंग स्टार्ट लिविंग, तो ऐसा तो था नहीं कि ऑर्नामेंटल प्लांट जी पहले से ही थे, सारी चीज़ें हमने कहाँ से ली हैं, नेचर से। जो हमने फ्रूट प्लांट और फ्रूट प्लांट कहाँ से लिए, नेचर से। बट विद पैसेज ऑफ टाइम वी कीप ऑन कल्टिवेटिंग देम, तो उनमें बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है, तो वो वाइल्ड हैबिटेट में कई बार सूट नहीं करते, क्योंकि उनको आदत पड़ गई केयर की, है ना। अब जैसे ये हरमान ने बोला था कि पापा ने बोला घर से बाहर निकल जाओ, तो आप यू डोंट नो वेयर टू गो, है ना। वैसे इन प्लांट्स को भी आदत पड़ गई है क्या, तुम्हारे साथ रहने की हो सकता है, तो घर से बाहर जाएंगे तो दे कांट सर्वाइव, ठीक है ना। तो विद पैसेज ऑफ टाइम जैसे आप कल्टिवेशन आता है, सो मेनी अडेप्टेशंस होती है, दैट इज कॉल्ड इवोल्यूशन। क्या बोलते हैं उसको, इवोल्यूशन। तो दिस इज वेरी गुड नॉलेज, टैक्सोनॉमिकल नॉलेज। उसकी कीज की हेल्प से आप आइडेंटिफाई करोगे प्लांट्स को, देन यू कैन यूज दीज प्लांट्स अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स। जैसे कि अगर सपोज यू आर इन फ्यूचर यू आर वेरी वेल इवेंट मैनेजर, तुम्हें अलग अलग ऑर्नामेंटल प्लांट्स चाहिए होंगे, तो नेचर से तुम ला सकते हो। जैसे तुमने वहाँ पे पाइलागन था, देखा कितना ब्यूटीफुल लग रहा था, पूरे नेशनल पार्क में क्या देखा, पाइलागन था। इवन सर्वे बोर्ड सर्वे में अपने घर में ये बनाऊंगा, है ना। सो यू हैव टू चूज द सच काइंड ऑफ स्पीशीज विच आर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर एवरीबडी, है ना। और तुम वैसा डिलीवर करो। और मुझे लगता है कि ऐसे सिंपल अगर अपना करियर चूज करने से अच्छा तो ऐसा करियर चूज करना जहाँ कि आपका टैलेंट मतलब दुनिया को दिखे, और एक चैलेंजिंग हो कि आप क्या नई चीज़ें डिलीवर कर रहे हैं ना। एंड ट्रस्ट मी, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज इनसाइड अस, है ना। बस खुद को ग्रो करने की जरूरत है कि हम और एक करें, अपना विजन क्लियर करें।